Okay, good morning to all of you. Good morning, ma'am. Am I clearly audible? Yes, ma'am. Okay. So today we'll complete the last topic of chapter number 2, and then we will start with the revision part of chapter number 1 and chapter number 2. I will give you some questions which is important as perspective to the mid semester exam, right? बाकी क्लास में मैंने दे दिए, शायद आपके क्लास में मैंने नहीं दिए हैं एग्जाम क्वेश्चंस नहीं दिए है ना चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के. Okay, so I'll give you some questions for the preparations of mid semester exam. So just wait for a few minutes so all students can join. Okay, is my screen visible? Yes, ma'am. Okay, so in yesterday's lecture we have discussed about the DNS, right? हमने DNS पूरा देखा था, in which we have seen the two queries, recursive query and iterative query. So how it works? What is iterative query? First let me know. Back and forth. Okay. Okay, so we can say in iterative query that at every iteration, the local DNS server is getting the response from the other servers, right? At every iteration, there is a response message from every server, right? Whatever the result that is generated by their end, that is responded to the local DNS server. That is then we can say iterative query. In the recursive query, what happens? It will like we can say if the local DNS does not have the full data, then it will pass, or we can say it will forward that query to the next DNS, right? So that we can say about the recursive query. So हमने ये discuss कर लिया था. Then after we have discussed about the DNS records, which is very important, right? ये आ सकता है एग्जाम में, कोई भी एक टाइप पूछा जाएगा that explain type A DNS records, right? So पहले तो DNS records क्या है, उसमें कितने fields है, right? वो fields हम जाने हैं कि भाई name और value है, it totally depends on the type of the records we are using. Type, that is there are mainly 4 types of the DNS records: टाइप ए, टाइप सी नेम, टाइप एनएस, टाइप एमएक्स, राइट? अगर टाइप ए है देन यू हैव टू मेंशन दैट इन द नेम फील्ड देयर इज अ नेम इज द होस्ट नेम एंड वैल्यू इज द आईपी एड्रेस, राइट? फॉर फिर एक एग्जांपल देके समझाना है कि सपोज दिस इज द यूआरएल, देन this URL, this is the host name of this URL and this is the IP address. IP address तब कोई भी दे दोगे तो चलेगा, राइट? क्योंकि एग्जांपल के टाइम पे चलता है, तो हमारे पास फिक्स IP एड्रेस किसी का नहीं होता है. Then for the scene name, name is the alias name and value is the canonical name. So we have discussed what is alias name and what is canonical name. Then after we have discussed type NS. So उसमें name क्या होगा? Domain. Name is the domain and value is the host name of the authoritative name server, right? So this is an type NS. And type MX, name is the domain name and value is the name of the mail server. So this part we have already completed. Then after we have started with socket. तो socket में क्या है? You can say yes.
It is analogous to the door, right? When the sender wants to send a message, it requires one socket to proceed the we can say to proceed the message further, right? अगर sender को कोई message भेजना है, receiver को कोई message receive करना है, it requires a socket at their end. Sender को भी एक socket चाहिए होगा, receiver को भी एक socket चाहिए होगा to send the data as well as to receive the data, right? So we can say this is a socket. अब there is another topic that is socket programming, right? So here we can say two socket types for the transport services. अभी यहाँ पे जो दो प्रोटोकॉल है, we already aware of the transport layer, right? So transport layer में कितने protocols है? There are two protocols. कई वांधो नहीं, it's okay. ઉતાવળમાં આવી ટી-શર્ટ ખરાબ થઈ ગયું. Okay, so we know that OSI model આખું યાદ રાખવું પડશે, right? What are the protocols of application layer? ઘણા બધા છે, આપણે બધા ડિસ્કસ કર્યા. और दो SMTP के पार्ट है. Online students can also answer what are the protocols of application layer. ये तो पता होना ही चाहिए. ये सारे प्रोटोकॉल्स डिस्कस कर लिए. और ट्रांसपोर्ट लेयर आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट लेयर के कितने प्रोटोकॉल्स है. दो है. पहले एप्लीकेशन लेयर के पूरा करें. HTTP, FTP, SMTP, POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. These are the 5 protocols of application layer. ये आपको याद रखने हैं. एग्जाम में आ सकता है. List the names of the protocols in the application layer. Explain in brief. Right? So सभी protocols का आपका थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए. अगर brief में है तो at least you need to write 2 or 3 points of every protocol. Right? So yes, in the transport layer में कितने protocols है? 2 ऑलरेडी लिखा है. TCP और UDP. TCP क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर का चैप्टर पढ़ चुके हो पूरा. UDP is a user datagram protocol. TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. अब TCP जो है वो कौन सा प्रोटोकॉल है? मतलब कनेक्शन लेस है या कनेक्शन ओरिएंटेड? Why TCP is connection oriented? I just wanted to know कि ट्रांसपोर्ट लेयर में कितना आता है और मुझे कितना समझाना है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो कंसेप्ट है आप लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हो, राइट? वो पूरा हो गया वो चैप्टर की बाकी है. हाँ, तो ये पता होना चाहिए. अगर नहीं है तो मैं बोलूंगी. Okay, so that's why we can say TCP is connection oriented. Why UDP is connection less? आपको लैब में करवाया था कल, इसलिए याद है. Okay, so TCP is a connection oriented protocol. Now suppose if it is asked TCP connection oriented क्यों है, right? या तो फिर TCP reliable protocol क्यों है? So we have already discussed the 3-way handshaking process. राइट. सो टीसीपी में क्या होता था कि पहले क्लाइंट और सर्वर है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, राइट? वंस द कनेक्शन रिक्वेस्ट इज सेंड फ्रॉम द क्लाइंट साइड टू द सर्वर साइड, सर्वर विल receive the connection request, accept the connection request and send back the response with the acceptance of connection establishment. In the third step, the client will request for an object, right? So we can say whatever the object that client has requested for, server will send back the response, right? And after getting the object from the server,
client will again send back the response with an acknowledgement that whatever the object that you have sent is successfully received by me. राइट. सो टीसीपी में क्या है कि अगर कोई सर्वर ऑब्जेक्ट सेंड करता है तो क्लाइंट उसका एक्नॉलेजमेंट देता है कि आपने जो भेजा वो मेरे पास पहुंच गया है. राइट. सो वी कैन से अगर क्लाइंट का एक्नॉलेजमेंट नेगेटिव, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ द एक्नॉलेजमेंट, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट. पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट को एसी के रिफर किया जाता है. यस, थैंक यू सो मच. आमा क्या છે? ये चैप्टर 1 के ही है. चैप्टर 2 ઓકે, પછી આપી દેજો. નહીં પણ મારે આખા ક્લાસ ને લખાવવા પડશે ને. વાંધો નહીં, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ओके, सो इसलिए वी कैन से टीसीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड. नाउ लेट्स से कि रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी किसके ऊपर बेस्ड है? इफ आई से टीसीपी इज अ रिलायबल प्रोटोकॉल, तो रिलायबिलिटी किसके ऊपर बेस्ड करती है? ओके, हाँ, टीसीपी इज अ रिलायबल प्रोटोकॉल. टीसीपी को हम रिलायबल बोलते हैं. राइट. So first thing we can say कि TCP is a reliable protocol because whatever the packet that has been sent by the server and received by the receiver, then we can say receiver is sending back an acknowledgement to the server, or we can say to the another host that your packet has been received successfully. Now let's say if the packet has not received successfully at the client side, or we can say at the another host, so what happens in that case कि पैकेट कहीं पे ड्रॉप हो गया होगा. राइट. या तो फिर पैकेट में कोई एरर होगी, या तो फिर पैकेट सेंड ही नहीं हुआ होगा. सो व्हाट हैपेंस इन दैट केस? देयर विल बी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द होस्ट साइड दैट NACK, दैट मींस योर पैकेट हैज नॉट बीन रिसीव्ड एट माय एंड. राइट. तो उस टाइम पे क्या होगा? टीसीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो रीट्रांसमिट करता है. इफ द पैकेट इज लॉस्ट, if the packet is dropped in between, or if the packet is corrupted in between, at that time TCP has that facility to retransmit that packet. Right. So that's why we can say TCP is a reliable protocol. Right. Now if I say about the UDP, UDP है वो क्या है? Connectionless. TCP याद रह गया? अभी TCP सिर्फ पहले TCP क्लियर रखो माइंड में. टीसीपी क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड है. दूसरा क्या लिखा है? बाइट स्ट्रीम ओरिएंटेड, यानी कि जो भी पैकेट आता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइट. राइट. ऊपर से जब कोई पैकेट आता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइट एंड देन इट्स कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रीम. नाउ लेट्स से कि अगर कोई ब्लॉक है, राइट, तो वो ब्लॉक को अगर हम उसके छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर देते हैं, दैट वन पीस इज रिफर्ड टू एज अ सेगमेंट. राइट. वो एक पीस को क्या बोला जाता है? सेगमेंट. जो ऊपर से जो डेटा आता है वो पूरे एक ब्लॉक में आता है. राइट. वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देन अ स्मॉल पीस ऑफ अ यूनिट ऑफ अ ब्लॉक दैट इज रिफर्ड टू एज अ सेगमेंट. राइट. तो यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज अ बाइट स्ट्रीम ओरिएंटेड, यानी कि उसके पास जब आएगा तब पूरा एक ब्लॉक आएगा, पूरा एक बाइट आएगा डेटा का. राइट. एंड देन इट डिवाइड्स द होल ब्लॉक इनटू अ स्मॉल यूनिट व्हिच इज रिफर्ड टू एज अ सेगमेंट. Now in case of UDP, UDP उससे थोड़ा अपोजिट है. अब थोड़ा अपने आप सोचो कि UDP में क्या होता होगा. UDP इज कनेक्शनलेस. तो जो कनेक्शन ओरिएंटेड का कंसेप्ट था उसे थोड़ा रिवर्स में सोचो. कनेक्शन ओरिएंटेड, मैंने ऐसा बोला TCP इज कनेक्शन ओरिएंटेड. व्हाई? देन आई हैव जस्टिफाइड माय आंसर. तो उसका थोड़ा उल्टा सोचो. TCP कनेक्शन लेस, UDP कनेक्शन लेस है, तो उसमें क्या होता होगा? Take your time. हाँ, that is a different case. पहले हम कनेक्शन लेस क्या है, फिर अनरिलायबल क्यों है, दोनों पार्ट डिस्कस करेंगे. पहले कनेक्शन लेस क्यों है? ये आपको समझा दिया है इसलिए आप बोल रहे हैं. आप लोग सोचो. जी हाँ. Your first class, what's your name?
जयदीप एंड ध्रुवी। वैसे तो अच्छा दिमाग है, याद रह जाता है। ओके, सो यूडीपी इज कनेक्शन लेस। क्यों यूडीपी कनेक्शन लेस पहले तो इतना पता चलता है कि कोई कनेक्शन नहीं होगा, राइट। डेटा ट्रांसमिशन करने से पहले देयर विल बी नो कनेक्शन बिटवीन वन होस्ट टू दी अनदर होस्ट, और वी कैन से बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, राइट। अभी कनेक्शन लेस है, सो कोई 3-वे हैंडशेकिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं होगा, राइट। यूजर को कोई डेटा चाहिए, सो व्हाट इट विल डू, इट विल जस्ट रिक्वेस्ट फॉर इन डेटा and another side there will be a response, data भेज देगा, right। Now sometimes it happens, and if we consider the scenario that if the data packet is lost or it is dropped somewhere or the data packet is corrupted, right, so what happens in case of UDP? अगर UDP यूज हो रहा है तो क्या है, वो पैकेट हमको फिर से नहीं मिलेगा, लॉस हुआ करप्ट हुआ, हो गया, right। UDP में there is a no facility of retransmitting the packet, right, so that's why we can say UDP is unreliable as well as it is connection less protocol। now let me give you a real time example। YouTube आपने देखा, आपको करवा दिया है इसलिए आप फटाफट आंसर दे रहे हो। YouTube में क्या होता है कई बार कि हम लोग वीडियो देखते हैं तो कुछ टाइम पर वीडियो जो होता है वो ब्लर हो जाता है, इफ यू माइट हैव ऑब्जर्व, और उसके बाद अपने आप से सही हो जाता है, राइट। सो इट यूजेस अ यूडीपी, वो यूडीपी प्रोटोकॉल यूज करता है, कुछ बीट्स है वो छोड़ देता है, छोड़ नहीं देता है बट छूट जाती है, राइट। सो व्हाट हैपेंस, वो बीट को फिर से रीट्रांसमिट नहीं करता है, राइट। छूट गया, ब्लर दिख रहा है, थोड़ी देर ब्लर दिखेगा, फिर हो जाएगा कंटिन्यू, राइट। सो वी कैन से यूडीपी में अगर कोई डेटा पैकेट लॉस्ट हो जाता है या फिर कोई बीट छूट जाता है, देयर इज नो फैसिलिटी ऑफ रीट्रांसमिटिंग दैट बीट, राइट। सो दैट्स व्हाई वी कैन से यूडीपी इज अनरिलायबल प्रोटोकॉल, राइट। और उसमें कोई एक्नॉलेजमेंट जैसा कोई है ही नहीं, राइट। अगर कोई होस्ट डेटा पैकेट सेंड कर रहा है, वो छोड़ के बोलो, am I audible to online students? Yes, ma'am. ओके, अगर कोई होस्ट डेटा पैकेट सेंड कर रहा है एंड इफ दे आर यूजिंग द यूडीपी प्रोटोकॉल, राइट, सो सेंडर ने अगर पैकेट सेंड कर दिया, आफ्टर दैट sender has no concern that whether the packet has been successfully reached at the receiver side or not, right। पैकेट लॉस्ट हुआ, रिसीव हुआ, कोई मतलब नहीं है, उसका काम था पैकेट सेंड करना, पैकेट सेंड कर दिया, ना ही वो एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा और ना ही उसको कोई कंसर्न होगा कि पैकेट सक्सेसफुली रीच हुआ या नहीं, पैकेट करप्ट हुआ, लॉस्ट हुआ, कोई कंसर्न नहीं होगा, राइट। सो दिस इज, वी कैन से ये भी एक रीजन है यूडीपी को अनरिलायबल बोला जाता है। तो अब क्लियर है टीसीपी यूडीपी। ट्रांसपोर्ट लेयर में ये सारे कंसेप्ट कवर हो ही जाते हैं, डिटेल में है टीसीपी एंड यूडीपी का डिफरेंस, राइट। पर आपको नहीं पता था इसलिए पूरा एक्सप्लेन किया क्या। हाँ, यस, इन अगर स्पीड की बात करें, दैट यूडीपी इज फास्टर प्रोटोकॉल, राइट। ऑब्वियसली ये सारी प्रोसीजर से पता चल ही जाता है कि यूडीपी फास्टर क्यों है, राइट, क्योंकि वो डेटा सेंड करता है, उसके बाद वो एक्नॉलेजमेंट की वेट नहीं करता है, दूसरा करना है दूसरा कर देता है, तीसरा करना है कर देता है, राइट। सो ज्यादातर गेमिंग एप्लीकेशन में यूडीपी यूज होता है, राइट, कि जिसमें कोई एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं होती है, राइट। फ्रॉम दी एट दी अदर एंड वी डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट, so in that case UDP is used। जहां पे स्पीड का कंसर्न है वहां भी UDP यूज होता है, because UDP is faster than TCP। So it's clear now? Okay, so the same scenario is given here, application example। Client reads a line of character from its keyboard, sends the data to the server, right। Client send करता है, server receives the data and converts the character to the uppercase, server sends the modified data to the client, client receives the modified data and displays the line on its screen। थोड़ा टेक्निकल टर्म में दिया है, बट हमने जो जनरल टर्म्स में बात की कि डेटा पैकेट सेंड करना, रिसीव करना, यहाँ पे लाइन्स को रीड करते हैं, कैरेक्टर्स को रीड करते हैं, उसको अपर केस में कन्वर्ट करते हैं, तो थोड़ा टेक्निकल दिया है। नाउ लेट्स जस्ट लुक एट द प्रोग्राम। क्लाइंट सर्वर सॉकेट इंटरैक्शन यूडीपी। तो पहले यूडीपी पता होना चाहिए, यूडीपी के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। यूडीपी कनेक्शन लेस है, यानी कि डेटा ट्रांसमिशन होगा तो कोई कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट नहीं होगा,
राइट? तो दिस इज द जनरल लाइन, क्रिएट सॉकेट पॉट एक्स, अभी पॉट कोई भी मान लो कि पॉट इज इक्वल्स टू एक्स, जनरली वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, किसके साथ कॉम्बिनेशन में कौन सा प्रोटोकॉल है, राइट? तो यहाँ पे सिर्फ ले लिया है, अज्यूम किया है पॉट इज इक्वल्स टू एक्स, सर्वर सॉकेट यानी कि ये सर्वर साइड है, ये क्लाइंट साइड है, तो सर्वर सॉकेट AFINET SOC अंडरस्कोर डेटाग्राम, राइट? ये सिंटैक्स है, ये आपको याद रखनी है, टेक्निकल सिंटैक्स। जनरली प्रोग्राम्स नहीं पूछे जाते सॉकेट प्रोग्रामिंग के, सॉकेट प्रोग्रामिंग में उसका कंसेप्ट पूछा जाता है, राइट, कि वो क्या है, और जनरली इसमें TCP और UDP का थोड़ा कंसेप्ट रहता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व दिस, देन यहाँ पे कोई कनेक्शन रिक्वेस्ट की कोई लाइन नहीं है। इफ यू सी दिस, यहाँ पे सॉकेट क्रिएट कर रहे हैं, डेटाग्राम को रीड कर रहे हैं, फिर आगे सेंड कर रहे हैं, रिस्पॉन्स आ रहा है, वही सब है। तो क्रिएट अ डेटाग्राम विद सर्वर IP port x, सेंड डेटाग्राम वाया क्लाइंट सॉकेट, यहाँ पे भी रीड डेटाग्राम फ्रॉम दी सर्वर सॉकेट, यानी कि यहाँ पे क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेज रहा है, सर्वर वो रीड कर रहा है, फिर अगर रिप्लाई करना है देन राइट रिप्लाई टू दी सर्वर सॉकेट, और ये रिस्पॉन्स यहाँ पे रीड कर रहा है। दिस इज द सिनेरियो ऑफ वी कैन से दी UDP, राइट? ये UDP का सिनेरियो है। तो यहाँ पे एक बार रिस्पॉन्स मिल जाने के बाद द कनेक्शन इज क्लोज। बट इफ यू लुक एट दी TCP सॉकेट प्रोग्रामिंग, then you can observe there is one line added जो UDP में नहीं थी। सेकेंड लाइन, वेट फॉर इनकमिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट, राइट? कनेक्शन जब तक एस्टैब्लिश नहीं होता है तब तक कोई भी डेटा ट्रांसमिशन नहीं होता है। So look at this program. So this line, these three lines were not there in the previous program, right? यहाँ पे सर्वर वेट करता है कि जब क्लाइंट कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है, कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, उसके बाद ही कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसफर होगा उसकी साइड से, राइट? अनटिल एंड अनलेस नो ऑब्जेक्ट विल बी ट्रांसफर्ड फ्री सर्वर साइड, राइट? क्योंकि कंसेप्ट ही TCP और UDP का ये है, TCP कनेक्शन ओरिएंटेड है, तो ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स some type of a connection that needs to be established between them, and then only the data transfer take place. While UDP is connectionless, वहां पे कोई कनेक्शन नहीं होगा, डायरेक्टली क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी ऑब्जेक्ट के लिए, सर्वर सेंड करेगा, क्लाइंट उसे फिर से रीड करेगा और रिस्पॉन्ड करके कनेक्शन क्लोज। बट यहाँ पे कनेक्शन सेटअप का एक फेज रहेगा, राइट, बिटवीन दी क्लाइंट एंड दी सर्वर। बाकी सिंटैक्स है वो आप देख सकते हो। चैप्टर इज ओवर, 3 चैप्टर खत्म हो गए। And suppose the server is unable to send the data for some whatever reason, it is not found, then it will send an error or the request will just be discard. એક વખત સેન્ડ કરી દીધું પછી એ કઈ જોતું જ નથી કે મારી રિક્વેસ્ટ ગઈ કે નહીં, હા કે ના, કઈ જ નહીં। डेटा मतलब सर्वर साइड થી કોઈ डेटा, हाँ, तो જે ક્લાયન્ટે રિક્વેસ્ટ કરી છે રિક્વેસ્ટ જ ડિસ્કાર્ડ થઈ જશે। In case of UDP, there is no acknowledgement. So this chapter ends here. So यहाँ तक कोई डाउट है इस चैप्टर में? Any doubt up till now? Online students can acknowledge me in the chat box. Chapter 2 માં બધું clear? You have missed an important part, Smriti.
ઓકે ઓકે નો પ્રોબ્લેમ. ઓકે સો ચેપ્ટર 2 માં બધા કન્સેપ્ટ ક્લિયર. HTTP થી લઈને બધા પ્રોટોકોલ્સ થી લઈને સોકેટ પ્રોગ્રામિંગ DNS. ઓકે હવે ચેપ્ટર 1 માં એક વખત રિવાઇઝ કરવું છે, એના પછી હું એના ક્વેશ્ચન્સ આપી દઉં. एंड देयर विल बी अ टेस्ट इन दिस वीक फॉर चैप्टर नंबर 1. ठीक है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए क्विज रहेगी एंड फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट्स देयर विल बी अ टेस्ट. हाँ पीपीटी आज शेयर कर दूंगी. Okay, so I am scrolling the PPT of chapter number 1. If you have any doubt, just interrupt me in between. Right? पूरी PPT एक बार chapter 1 की देख लेते हैं. Then after I'll give you some questions of chapter number 1 that you need to prepare for the mid semester exam. Right? सिर्फ वही questions नहीं होंगे, but yes, we can say कि उसके relevant questions होंगे. Right, so I am just scrolling the PPT. नया चैप्टर स्टार्ट करना है, इसलिए आज स्टार्ट नहीं करूंगी, नेक्स्ट लेक्चर से. वन टू थ्री, हाँ वही 3 चैप्टर्स है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. वही फर्स्ट चैप्टर. तो एक बार ये देख लेते हैं. પણ રિવિઝન ની એટલી બધી જરૂર પડશે. हाँ ठीक है. ओके सो डेटा कम्युनिकेशन द कंसेप्ट, ये व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन. अगर आपको क्वेश्चंस लिखने हैं साथ साथ लिखते जाओ. क्वेश्चंस मैं लिखवा रही हूँ, लिखते जाओ. ना लगता जाओ. मत लखू, मैंने क्लास में लिखवाए थे उन लोगों को. Okay, so first is the question from this topic can be like, what is data communication? What are the components of data communication? Online students write the questions for chapter number 1. तो डेटा कम्युनिकेशन की पहले डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी है कि डेटा कम्युनिकेशन क्या है, राइट. एंड देन आफ्टर व्हाट आर द कंपोनेंट्स. so mainly there are 5 components of the data communication. First is sender, receiver, message, protocol and transmission medium, right. So there are basically 5 components of the data communication. Then next is, there will be a question like what is protocol or define protocol. Then next is about the internet history. ये सिर्फ आपको पढ़ लेना है. Then next is data flow or we can say the transmission modes, right. इसको ट्रांसमिशन मोड्स भी बोला जाता है, या तो फिर ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज डेटा फ्लो मोड और व्हाट इज ट्रांसमिशन मोड. So first of all you need to describe what is data flow mode or transmission mode, and if it is asked what are the types of transmission modes, then you need to explain everything, right. There are mainly 3 types of the transmission modes: simplex, half duplex, full duplex. With examples आपको समझाना है.
ब्रॉडबैंड इसमें भी ऐसे कुछ कर सकते हैं ना, ब्रॉडबैंड का ब्रॉड no messages at the same time they can send in broadband, whereas in the baseband only one can send. हाँ ब्रॉडबैंड बेसबैंड हाँ, ये आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना है। तो सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल क्या होगा? हाँ, पर कोई एग्जाम्पल बताओ। सिंप्लेक्स यस, रिमोट और ओके, कोई सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल दे सकता है? रिमोट, वॉकी टॉकी नहीं, वॉकी टॉकी है, वो सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल नहीं है, वो हाफ डुप्लेक्स का है। बिकॉज द डेटा ट्रांसमिटेड इन बोथ द डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम, सो इट्स एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड। रेडियो बोल सकते हैं इफ इट इज ओनली वन वे कम्युनिकेशन, देन वी कैन से मॉनिटर, कीबोर्ड, राइट, वो सारे एग्जाम्पल्स में हम सिंप्लेक्स के एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं। देन हाफ डुप्लेक्स में वॉकी टॉकी, फुल डुप्लेक्स में फोन, ऑब्वियसली जो दोनों साइड से कम्युनिकेशन कर रहा है, दैट वी कैन से फुल डुप्लेक्स मोड। सैटेलाइट टू वे कम्युनिकेशन है, not at the same time, then we can say it's a half duplex. At the same time, then it is a full duplex. Then ये पूरा उसकी थियरी पार्ट है, ये आप पीपीटी में से भी रिफर कर सकते हो, राइट। नेटवर्क मैट्रिक्स एंड हाँ, नेटवर्क कोर की डेफिनेशन आ सकती है। व्हाट इज नेटवर्क कोर, पीछे दिया है। वन इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज डिले, डिले क्या है? Okay, what are the types of delay? No, that is not, we can say the types of delay. Transmission delay, that is one type of delay. Or हल्का propagation delay. नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, याद करो थोड़ा। फर्स्ट इज ट्रांसमिशन डिले, सेकेंड इज प्रोपगेशन डिले, थर्ड प्रोसेसिंग डिले, फोर्थ आ जाएगा याद। फिर आता क्या है? प्रोसेस हो गया पैकेट, यस, क्यूइंग डिले। फोर्थ इज क्यूइंग डिले, फर्स्ट इज ट्रांसमिशन डिले। तो ट्रांसमिशन डिले क्या होता है? ओके, प्रोपगेशन क्या होता है? फिर वही हुआ, ट्रांसमिशन में जाता है, प्रोपगेशन में जाता है। यहाँ से कूद के जाता है और ये सीधा जाता है, ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ट्रांसमिशन डिले क्या है? ये कंसेप्ट करवाया है क्लास में, इतना जल्दी कैसे भूल गए? एग्जाम्पल भी किया था, ऑब्वियसली ये सेमेस्टर का ही चैप्टर है ये। ये फर्स्ट चैप्टर में कर लिया है, एग्जाम्पल भी किया है। डिले कौन सा डिले? हाँ, मतलब उसको ट्रांसमिशन डिले को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? ओके, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, ट्रांसमिशन में ऐसा नहीं होता। ट्रांसमिशन डिले हम बोल सकते हैं द टाइम रिक्वायर्ड टू पुट द पैकेट ऑन द डेटा लिंक and the bandwidth required to transmit that packet, that is referred to as a transmission delay, right? टेक्निकल हो गया, सिंपल टर्म्स में समझाती हूँ।
लेट्स से कि एक सेंडर है, एक रिसीवर है, डेटा भेजने के लिए दोनों के बीच में कोई लिंक होगी, दैट इज वी कैन से ट्रांसमिशन मीडिया और वी कैन से ट्रांसमिशन लिंक दैट नीड्स दैट द सेंडर रिक्वायर्स टू ट्रांसमिट द पैकेट, राइट। अभी कोई सेंडर पैकेट भेज रहा है तो पहले उसको लिंक में पुट तो करना होगा, राइट। डायरेक्टली तो ऐसे धक्का नहीं मार देगा, पहले वो लिंक पर रखेगा पैकेट को, राइट। उसकी बैंडविड्थ चेक करेगा कि कितनी बैंडविड्थ चाहिए ये पैकेट को ट्रांसमिट करने के लिए, दैट इज द ट्रांसमिशन डिले। नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पैकेट। अगर पैकेट बड़ा है इट विल टेक मोर टाइम टू पुट द पैकेट ऑन द लिंक, राइट। सो वी कैन से the time required to put the packet on the transmission link and the bandwidth required to transmit the packet from one host to the another host, that is the transmission delay, right। अब उसका फॉर्मूला कैसे होगा? हाँ, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है ही। तो इसका इक्वेशन तो कैसे होगा? कंसेप्ट आ गया तो इक्वेशन बना सकते हो। मैंने बोला कि ट्रांसमिशन डिले पूरा किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाँ, तो ऐसा ही कुछ फॉर्मूला होगा। तो पहले बोल सकते हैं साइज ऑफ द पैकेट और लेंथ ऑफ द पैकेट डिवाइडेड बाय दूसरा पैरामीटर्स कौन सा था? ऑब्वियसली, सो वी कैन से साइज ऑफ द पैकेट डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ इज द ट्रांसमिशन डिले। अब याद रहेगा, राइट। अगर मैं सीधा बोल जाऊंगी तो आपने सिर्फ सुन लिया और फिर भूल जाओगे। अगर आप खुद से थोड़ा सोचोगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो ट्रांसमिशन डिले मतलब क्या कि जितना भी टाइम लगता है पैकेट को ट्रांसमिशन लिंक में रखने के लिए और उसकी बैंडविड्थ, दैट इज वी रेफर टू एज अ ट्रांसमिशन डिले। अभी पैकेट जितना बड़ा होगा उतना टाइम ज्यादा लगेगा। तो फॉर द फॉर्मूला वी कैन से कि जितना बड़ा पैकेट है दैट इज द साइज ऑफ द पैकेट, दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग द साइज और वी कैन से द लेंथ ऑफ द पैकेट डिवाइडेड बाय द बैंडविड्थ। हाँ, राइट। सो क्लियर है आप? ओके, व्हाट इज प्रोपगेशन डिले? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू ऑल? जो यहाँ पे विधि को पता था, लेंथ ऑफ द पैकेट डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। गुड। ओके, प्रोपगेशन डिले હા આમ પણ શું એનું ફોર્મ્યુલા શું થાય આમનું? હા, प्रोपगेशन। चलो एक जनरल एग्जांपल कंसीडर करो कि राजकोट टू बॉम्बे जाना है और उसके लिए प्रोपगेशन डिले क्या होगा? ओके, राज टू अहमदाबाद कंसीडर करो। चलो इतना लंबा रूट भी नहीं लेना है। हाँ, स्पीड मैटर, एक पैरामीटर स्पीड होगा। ऑब्वियसली जितना डिस्टेंस कवर करेगा और जितनी स्पीड से कवर करेगा दैट विल बी द प्रोपगेशन डिले, राइट। ऑब्वियसली पर टाइम वही कैलकुलेट करता है, स्पीड ऑब्वियसली कम हो जाएगी, राइट। डिस्टेंस तो वही रहेगा बट स्पीड कम हो जाएगी तो एक्यूरेट डिले मिल जाएगा, राइट। सो दैट इज प्रोपगेशन डिले। हाँ, तो समझ में आ गया? So distance upon speed, that is the propagation delay. Queuing delay? इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा, सिर्फ कंसेप्ट ही है क्यूइंग डिले का, क्योंकि इसके लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं बना सकते क्योंकि आगे क्यू में कितने पैकेट्स है दैट द होस्ट कैन नॉट आइडेंटिफाई कि कितने, अगर कोई पैकेट पहुंच रहा है किसी डेस्टिनेशन पे, राइट, तो उसको आइडिया नहीं होगा कि आगे कितने पैकेट्स है वो क्यू में है, राइट, या फिर प्रोसेस नहीं हुए हैं, राइट। सो क्यूइंग डिले इज द टाइम रिक्वायर्ड टू take the packet at the another side while waiting in a queue, that is we can say the queuing delay. Processing, okay, બધું મગજ નથી દોડાવવાનું. પ્રોસેસિંગ ડિલે ઇઝ નથિંગ બટ એક વખત પેકેટ પહોંચી જાય એને પ્રોસેસ થતા કેટલી વાર લાગે, that is processing delay.
બહુ બધા પેરામીટર્સ વિચારી લીધા. કઈ વાંધો નહીં, એટલું મગજ દોડાવો એટલું સારું. પ્રોસેસિંગ delays we can say the time required to process the data packet on the host side wherever it is reached, that is referred to as a processing delay. तो ये डिलेज आपको याद होने चाहिए, राइट. ये डिलेज इंडिविजुअल भी पूछे जा सकते हैं या फिर दी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है व्हाट इज डिले, व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिले, राइट. ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है. हाँ, वो डेफिनेशन व्हाट इज नेटवर्क कोर वो लिख देना, व्हाट इज नेटवर्क मैट्रिक्स वो भी लिख देना. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चन नोट कर रहे हो ना? ओके, गुड. Okay, delay is the most IMP. What is delay? Types of delay, most IMP. Delay. Then throughput, define throughput. What is network core? What is network matrix? What is delay? What are the types of delay? एक ही क्वेश्चन है. What is delay? What are the types of delay? एक ही क्वेश्चन है. What is throughput? Or we can say the defined throughput. Then next is, ये एक ही न्यूमेरिकल है, that is very important based on the डिले के ऊपर ही है, राइट. ये करवाया था क्लास में, तो ये एक बार देख लेना. इसका सॉल्यूशन भी दिया है स्टेप वाइज. थ्रूपुट हो गया. Then yes, types of connection. What are the types of connection? वो तो कंप्यूटर नेटवर्क टाइप हो गया. What are the types of computer network? ये types of connection है. So point to point and multi point. There are mainly टोपोलॉजीज भी दूसरा टॉपिक है. So ये हो गया what are the types of connection. Then types of computer network, right. So ये इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है. what is LAN, what is WAN, what is MAN. या तो फिर ऐसे हो सकता है explain the following terminology. उसमें LAN दिया होगा, MAN, WAN, PAN ऐसे दिया जा सकता है. फुल फॉर्म तो ऑब्वियसली लिखने ही होंगे. तो नहीं. ओके, व्हाट इज टोपोलॉजी? पहले डिफाइन करो टोपोलॉजी क्या है. कनेक्टिंग वेरियस क्लाइंट टू अ सर्वर. अलग अलग तरीके से क्लाइंट से सर्वर डिस्कस करें. ओके, डिफाइन कैसे कर सकते हैं? Establishing a connection between client with the main server. पर हर बार क्लाइंट सर्वर नहीं होगा इसमें. हाँ, ऐसे बोल सकते हैं. कुछ टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, या तो फिर ऐसा बोल सकते हैं जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क, राइट. So what is topology, or we can say define topology. ऐसा क्वेश्चन हो सकता है. What are the types of topology, right. जनरली 6 मार्क्स में होता है, तो 6 मार्क्स के लिए है तो आपको ब्रीफ में सारा एक्सप्लेन करना होगा along with the diagram. Geometrical representation of the devices which are connected with each other on the network. मैश, स्टार, बस, रिंग, राइट. पर्टिकुलर कोई टोपोलॉजी पूछी जाती है, लेट्स से कि व्हाट इज टोपोलॉजी, एक्सप्लेन मैश टोपोलॉजी. तो मैश अगर 6 मार्क्स में है तो मैश टोपोलॉजी का डायग्राम, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और मैश टोपोलॉजी का कंसेप्ट, इतना रहेगा, राइट. बट अगर सिर्फ ऐसा है व्हाट इज टोपोलॉजी, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ द टोपोलॉजी, देन यू नीड टू से 2 or 3 points of each topology along with the diagram.
राइट। डायग्राम तो इजी है इसके, डायग्राम थोड़े नीट एंड क्लियर होंगे देन इट विल बी गुड ना। स्केच पेन की भी जरूरत है, स्केल, हाँ स्केच पेन, ओके। व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडिया? व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडिया? હા પછી એને ડિફાઇન કેવી રીતના કરવાનું? Medium required to transmit the data from one end to the another end, right? So that is, we can say, the transmission medium. So what is transmission medium? Then ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, give the classification of the transmission medium. तो क्लासिफिकेशन पूरा पूछा है तो you have to make this diagram और उसके इसमें से 3 ले लो और उसमें से 3 ले लो, 3 दोनों में से समझा सकते हो। और इट इज इन 6 मार्क्स, राइट। 8 मार्क्स के क्वेश्चन तो मिड सेमेस्टर में होते हैं, राइट। बट लेट्स से कि अगर स्पेसिफिक पूछा है, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ गाइडेड मीडिया, तो गाइडेड मीडिया का ये 3 और ये 3 सब समझाने पड़ेंगे, राइट। और सिर्फ अनगाइडेड मीडिया पूछा है तो इसके सारे सब जो टाइप्स है वो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट। तो दोनों क्वेश्चन आ सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ गाइडेड मीडिया एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अनगाइडेड मीडिया। जो स्पेसिफिक पूछा है उसके बारे में ही लिखो। नहीं, कोएक्सियल, एक्सियल मतलब क्या? एक्सियल तो मैंने, कोएक्सियल गाइडेड से, दैट वी कैन से, गाइडेड का दूसरा नाम है बाउंडेड मीडिया और दिस इज अनबाउंडेड। गाइडेड जो होता है वो कोई फिजिकल मीडियम या वी कैन से इट्स अ वायर्ड मीडिया, दिस इज वायरलेस मीडिया, राइट। देन स्पीड जो है गाइडेड मीडिया की ऑब्वियसली ज्यादा होती है, इसकी कम होती है, राइट। चांसेस ऑफ लूजिंग, जनरली जो वायर्ड जो होता है उसकी स्पीड ज्यादा ही होती है कंपैरेटिवली। गाइडेड मीडिया में हम ऐसा भी बोल सकते, एक पॉइंट भूल गई मैं, हाँ, गाइडेड मीडिया में चांसेस कम है कि डेटा पैकेट्स लॉस हो, while there is a more chances of dropping the packets in case of unguided media, right? अगर मेरे पास टेबल होता मैं ट्रांसमिट क्या सेंड कर देती। वो भी तो इसका ही डिफरेंस नहीं हुआ। किसका? एक ईयर तक आप लगा के वायर लगा, तो बिकॉज़ दैट वाज द जनरली 1 सेकंड का डिफरेंस रहता है, वो इसकी वजह से ऑब्वियसली, हाँ। ओके, सो ट्रांसमिशन मीडिया हो गया। एक मिनट, कंपेयर गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया, जो अभी बोला वही, कंपेयर गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया। હા, લખી શકાય, પછી તો જેટલા યાદ આવે, કન્સેપ્ટ ક્લિયર હોય તો બહુ બધા પોઈન્ટ્સ યાદ આવે। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया विथ एग्जांपल, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ गाइडेड अनगाइडेड, दोनों क्वेश्चन अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। हाँ, આગળ બધું જો આમાં છે જ, જેકેટ શું છે, फिर इसका एडवांटेज, हाँ, तो ई થોડુંક જોઈ લેજો એક તમારા એન્ડ થી, રાઈટ। થોડુંક થિયરી પોર્શન છે આમાં, ઈ ખાલી જોઈ લેવાનું થશે। અનગાઇડેડ નું બધું આપેલું છે। यस, मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम एन एंड सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 8 मार्क्स में OSI रेफरेंस मॉडल आ सकता है। ये जो क्वेश्चन होगा वो एंड सेमेस्टर एग्जाम में 8 मार्क्स में हो सकता है, राइट। और 8 मार्क्स में है, देन यू नीड टू एक्सप्लेन एवरी लेयर, राइट। सारे लेयर्स को डिटेल में समझाना है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से OSI को क्लास में एक्सप्लेन किया है, राइट। और OSI में मैंने एटलीस्ट 3 लेक्चर्स लिए OSI पे सिर्फ, राइट। तो मैंने ईच एंड एवरी लेयर बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो एक बार ये क्वेश्चन देख लेना, ये मोस्ट IMP है। डायग्राम तो रहेगा ही उसका, साथ में जो सारे 7 लेयर्स है वो
किसके ऊपर वर्क करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या यूज करते हैं, राइट, वो भी देखना है, प्रोटोकॉल्स क्या है उसके, राइट। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, देन यू नीड टू एक्सप्लेन एवरी लेयर इन डिटेल, राइट, सारे लेयर्स है वो डिटेल में समझाना है। पीयर टू पीयर यहाँ पे क्या है, वो तो आर्किटेक्चर है, वो आर्किटेक्चर है डियर। पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर इज द आर्किटेक्चर, वो प्रोटोकॉल है, और तुम जो बात कर रहे हो वो एक आर्किटेक्चर है। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट इज टीसीपी आईपी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको देखना है किसमें कौन सा प्रोटोकॉल है, क्या लेयर है, ये भी आपको देखना है, राइट। देन डिफरेंस बिटवीन ओएसआई एंड टीसीपी, राइट, ये भी क्वेश्चन लिख दो, इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं इसने, नहीं है। ओएसआई रेफरेंस मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, वो भी लिखो, मोस्ट आईएमपी। देन नेक्स्ट इज difference between OSI and TCP IP, then what is network edge definition आ सकती है, network core की definition, then explain circuit switching and packet switching, circuit switching, packet switching and message switching, right, तीनों का डिफरेंस आ सकता है, या फिर इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है, या फिर सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग का डिफरेंस आ सकता है, राइट। सो यू मस्ट बी क्लियर विद द कंसेप्ट, सर्किट स्विचिंग क्या है, पैकेट स्विचिंग क्या है, मैसेज स्विचिंग क्या है, राइट, वो सब क्लियर रखना है। हाँ, कंपेयर कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड, राइट, ये भी दिया गया है, तो ये भी आप रेफर कर सकते हो। So this is all about the chapter number 1. पूरा हो गया। Okay, write your enrollment number in the chat box, online students. कोई पण एक कोई एक जाणू લખના આમ તો બધાના ओके। सो लास्ट में हमारी लैब है बी बैच ने सी बैच के साथ। वन नोट फाइल्स की जरूरत है डियर राज। ओके, आई विल अपलोड दैट फाइल्स। वो थोड़ी रफ होगी, अगर आप कंफर्टेबल हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम एंड टाइम पे रफ चीजें ही काम आती है। ठीक है, अपलोड कर दूंगी। Thank you.